Hello, Assalamu alaikum and good morning. Welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup brought to you from Australia. कल दोस्तों बड़ा दिन था. पहला सेमीफाइनल हुआ जो उसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली. पाकिस्तान अब फाइनल में जाने वाली पहली टीम है इस वर्ल्ड कप के लिए. और आज एक और बड़ा मुकाबला ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. आज इट इज India versus England. This is a big game as well. And this is going to determine who meets Pakistan in the finals. Adelaide. आज हम आपको 1 बजे बराह रास्त लेकर जाएंगे. 1 बजे बराह रास्त ये मैच आप लोगों की स्क्रीन्स पर यहाँ पर ही आएगा. With me in the pavilion, I'm joined by the monuments of the game. These 4 gentlemen have served the game of cricket and Pakistan with great honours and have made us all very proud. I've got the young and dynamic Shoaib Malik. Shoaib, good morning. Assalamu alaikum. Good morning. Assalamu alaikum. Mr. Dependable, Mr. Reliable, Misbah ul Haq. Assalamu alaikum, Misbah. Wa alaikum assalam. The toe-crushing batsman terrorizing the wonderful Waqar. Younis, good morning, Waqar. Good morning. Assalamu alaikum. And I've got the legend himself, the greatest of all times, the Sultan in the house, Wasim Akram. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ji, and good morning, everyone. What a great victory it was for Pakistan yesterday. Yeah, unbelievable. Abhi tak recovering, although I went to bed very early. That was my celebration, but I think mentally I was so excited कि नींद नहीं थी आ रही मुझे. Because एक तो पाकिस्तान टीम जीता उसकी खुशी और मुझे ज़्यादा खुशी जो थी सारे पाकिस्तानी हैं. एक तो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में. They were happy. I've seen the scenes. I've seen the videos on social media. Yeah. Shopping malls were packed. The villages were packed. The shops were packed. It was an incredible moment. Yes, it was. And not only that, you know, हमारे जो troops हैं जो deployed हैं United Nations Commissions में in other places, and in fact we have a huge deployment in Qatar. चूँकि कतर में जो FIFA World Cup हो रहा है उसकी security भी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के पास है. तो वहाँ पर भी हमारा जो पूरा contingent था, they were watching the match as well and celebrating as well. So this is just, you know, fantastic. Waqar, you know, still the adrenaline still rushing, huh? Still recovering. Still Yeah. recovering. Yeah. I mean, wonderful day for Pakistan cricket. You know, it was convincing win at the end, and good to see Babar and Rizwan getting runs. You know, एक छोटा सा जो monkey on the back था वो भी उतर गया है कि they are back in form. So going forward, hopefully, you know, they will all deliver now and then bring us the trophy. One game away. We're 1 game away from that trophy. 1 game away. Shoaib, congratulations. Your dance moves have gone global. Well done. Yeah, really well done. Thanks to my body. Thanks to your body. What does that mean? Thanks to people. Body responded. Oh, body responded. अच्छा नहीं यार. सारा दिन बैठ के उसके बावजूद. But I had to stretch myself. So Yes. I did before get on to a dancing floor. It's viral. You and Waqar, Younis, are viral globally right now. It's from all parts of the world. People are using this as, you know, And it was a feel-good clip. You guys did. It was actually really feel-good. Yeah. थोड़ी सी आपसे शिकायत है वसीम लोगों को कि पिछले साल आपकी मूव्स बहुत अच्छी थी. इस साल आप थोड़े म्यूटेड चल रहे हैं. नहीं, मैंने रात को कहा कि अब इंशाल्लाह थोड़ी सी बैक स्टिफ है. नहीं, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो मैं घुंघरू पहन के यहाँ दरमियान में पग घुंघरू पहन इतना भी ओवर नाची थी ये नाचूंगा. इतना भी ओवरडू करने की जरूरत नहीं है हमें. We can just still have a celebration. Okay, sure. And of course, Misbah showed so much excitement yesterday. He did. उन्होंने He was happy too. 8 या 10 तालियां बजाई हैं. बड़ी बात है. In those glasses, huh? You look so gangster in those glasses. It's not even. It's just amazing, man. He just said 8 से 10 तालियां बजाई. हाँ, बड़ी celebration थी मिसबा की तरफ से. क्यों मिसबा? Yes. All right, let's get to the business of the semi-final at hand. Today it is England clashing with India. 2 very, very good teams taking on each other to find that coveted place in the final. Let's see who gets in. Let's start off between the two teams, Wasim. Clearly, India has had a better record against England in T20 eyes. Yeah, miles ahead India. और ये I think 10 साल के बाद England और इंडिया वो T20 वर्ल्ड कप में मिल रहे हैं. लास्ट टाइम दे मेट वाज इन 2012 एंड व्हेन द डर्बन. फिर उसके बाद वो जो एक वर्ल्ड कप में खेले थे, आई थिंक इट वाज अ डर्बन वेयर युवराज सिंह हिट दोस 6 sixes to Stuart Broad. Incredible moment that was for him and for India, of course. But yeah, India definitely looks to me, I think, favourites for this game. But anything can happen. It's a knockout game, one-off game, semi-final, World Cup. England is dangerous, but England की मुझे बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा है कि वो एक सही नंबर्स पे नहीं आ रहे.
यू नो और इंडिया इज़ उनकी बैटिंग ऑर्डर भी सेट है, उनकी बॉलिंग भी सेट है एंड दे प्लेइंग एट एडिलेड जो विराट कोहली की फेवरेट ग्राउंड है। अगर उसका आप रैकेट देखें उसके पता नहीं 5-8 के कितने 100 हैं वहाँ पे सिर्फ उस ग्राउंड में। ही सेड इन हिज इंटरव्यू दैट इज़ वन ऑफ हिज फेवरेट ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। Yeah, and England does not have a very good record here in Adelaide. They have some bad memories. They've lost a 50 overs game to Bangladesh here. Yeah, back in 2015, I Yeah. think that World Cup. Yeah, but that's all gone. Yeah. You know, it's a new game, new day. You know, not a new pitch. Yeah. Because we've been hearing and reading all around that the pitch was used. Is being used. It's mostly English media who's complaining. I don't know why they're complaining. पाकिस्तान ने कंप्लेन नहीं किया जो कल की पिच पे ऑल्दो हम जीते हैं, किसी ने कंप्लेन और नहीं किया। ये कंप्लेन क्या बनती है? जो है वो खेलना है। और ये पिच लास्ट जो यूज़ हुई थी 4 नवंबर को हुई थी। 2 मैचेस हुए थे उस पर, उसके बाद रेस्ट मिला, 10 है तो 6 दिन का वीक का रेस्ट मिल गया इसको। लुक, जब इतना फास्ट मूविंग वर्ल्ड कप हो, टाइम बहुत कम हो, यू नो, तो ग्राउंड्समैन को भी बड़ा मुश्किल हो जाता है टू कीप प्रिपेयरिंग दोज पिचेस और फ्रेश पिचेस, और स्पेशली विद यू नो द ड्रॉप इन पिचेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ब्लॉक छोटा होता है, so I think one should just not focus on that. England should just focus on the game tonight, because it's a semi-final of the World Cup. So if you start thinking about it, your body will start reacting. You know, this is not fair. This is not yours. You go into a negative mode. So be positive and play to your potential. And England have got the sources. They are good side. They have got players ke jo, you know, they can take games away single-handedly, especially in batting. ठीक है, उनकी बैटिंग ऑर्डर जैसे वसीम भाई ने कहा कि थोड़ी सी इश्यूज हैं, मलान भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, एंड but they have Phil Salt sitting outside, so they can really bring in some destructive batsmen. It should be a very, very good game. Yeah. मिसबा, ये वसीम ने कहा कि 4 नवंबर को लास्ट ये यूज़ हुई थी, 1 हफ्ते का रेस्ट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या पिच को क्यूरेट किया जाता है, क्या उसको मज़ीद ट्रीट किया जाता है, उसको पानी दिया जाता है, रोल किया जाता है, या छोड़ देते हैं पिच को बिल्कुल? नहीं, जाहिर है उसको दोबारा से करते हैं, थोड़ा बहुत पानी उस पर आप करके स्प्रे करके उसको रोल करते हैं। ऑस्ट्रेलियंस डेफिनेटली वो थोड़ा सा उनका तरीका डिफरेंट है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो पानी के बगैर जब तक वो सही तरह पूरा पानी ना दें उसके बगैर पिच बनती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा, बट ओवरऑल आई थिंक कि इंडिया लुक स्ट्रॉन्गर और फील गुड फैक्टर होगा उनका। प्रीवियस रिकॉर्ड बड़ी गेम्स में आके बहुत मैटर करता है। साइकोलॉजिकली आप वो फील करते हैं, जैसे अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान हमेशा जब सेमीफाइनल में होता है वो प्रीवियस रिकॉर्ड की वजह से वैसे आप अच्छा फील कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अंडर कंट्रोल है चीज़ें, और ये आपको बहुत मैटर करता है इस बड़े मैच में। नो डाउट इट्स अ न्यू गेम, हाँ जी, ऑन अ डे किसने बेहतर खेलना है, बट गोइंग इनटू दैट मैच विद कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज वो बहुत मैटर करता है। और अभी वेन्यू, प्रीवियस रिकॉर्ड, इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म, मोमेंटम, इंडिया इज़ लुकिंग फार बेटर। अभी तक उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है, फिर एट द निक ऑफ द टाइम सेमीफाइनल से पहले इंजरीज आ गई हैं, तो इंग्लैंड को काफ़ी प्रॉब्लम्स। और अगर यहाँ से वो मैच ये जीत जाते हैं, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ रियली बिग थिंग फॉर देम। ओवरऑल लग रहा है कि इंडिया स्ट्रॉन्गर साइड और चीज़ें उनकी फेवर में। या एब्सोल्युटली। शुएब, इंजरी कंसर्न्स डेफिनेटली मौजूद हैं इस वक्त इंग्लैंड के लिए, और वो है डेविड मलान। अगर डेविड मलान नहीं खेल पाते आज तो कितना बड़ा ये धचका लगेगा इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को, और उनको कौन आइडियल कैंडिडेट है रिप्लेस करने के लिए? मुझे ये लगता है जो एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लैंड टीम उनसे, डेविड मलान से, कि प्ले द एंकर इनिंग्स। और आई गेस उस अगर हम पूरा बैटिंग लाइनअप देखें, क्योंकि बहुत सारे बैटर्स ऐसे हैं, दे हैव ऐसे बैट्समैन भी हैं, मोस्टली दे स्कोर रन्स विद हिटिंग बाउंड्रीज। वो एक ऐसे हैं कि जो एक सहारा देते हैं एक साइड पे कि जी मैं स्ट्राइक रोटेशन करता रहूँगा और आप दूसरे एंड से अपना गेम खेलते रहें। और अगर वो नहीं खेलते तो एज वकार भाई सेड, फिल सॉल्ट जो है, ये देखें, ये उनको जो है ये इंजरी हुई ग्रोइन की, तो उसके बाद से जस्ट वॉकड ऑफ और स्ट्रेट अवे, मतलब बिल्कुल कोई उन्होंने स्ट्रेच नहीं किया, न्यू के यार ये ज़्यादा पुल हो गया। एंड आई गेस आप मुझे
इसको चेक करवाना चाहिए और जो भी फिर हो उसके बाद फिजियोज एंड डॉक्टर्स दे विल डिसाइड व्हाट आई शुड डू, बट इमीडिएटली ही वॉकड ऑफ। और बिल्कुल बैकबोन है, रिसेंट पास्ट में ही वाज नंबर 1 बैटर एज वेल इन T20s, तो they had a lot of expectations from him, but he's struggling with groin injuries, so I'm sure Phil Salt is most likely to take his we'll talk about Phil Salt in a minute, but हम हमेशा इंग्लैंड की टीम की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी बड़े सुपर फिट लोग हैं, यू नो, बड़ी फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है. Then how can you have an injury like this while fielding? And it wasn't me. I mean, it can happen to anybody. But what do you reckon has happened here? Look, groin injury, hamstring injury, doesn't matter how physically fit you are. Yeah. That's nothing to do with it. It can happen. Just आपका मसल शायद थोड़ा टायर्ड है, आपने उसको पुश किया है, सर्टन एंगल पे गिरे हैं, सर्टन एंगल पे भागे हैं, उससे आपका ये चीज़ें पुल हो सकती हैं. तो इससे फिटनेस का कोई ताल्लुक नहीं है. और उनको जो मेन प्रॉब्लम होगी मिलान की तो होगी जो उनका मार्क वुड है इंजर्ड. जी, वो अभी बात करते हैं बॉलिंग पे उनकी. नहीं, मगर ये दो बड़े नाम है, रेगुलर मैचेस खेल रहे थे. अगर ये आप कहते हो कि सीजे को लाएंगे, क्रिस जॉर्डन को, उसने तो मैच ही कोई नहीं खेला हुआ, सो दैट विल बी अ बिग माइनस फॉर इंग्लैंड. आई थिंक मलान का जो इंजरी की बात हो रही है, जब आप लॉन्गर वर्जन खेलते हैं तो इंजरी के चांसेस आपको कम होते हैं. जब ये शॉर्टर वर्जन होता है, इसमें क्योंकि फास्ट मूविंग होता है, एवरीवन इज जस्ट सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू पुश दैट एक्स्ट्रा यार्ड, उसमें कहीं ना कहीं आपको बॉल ऐसी जगह जाता है एंड यू जस्ट सॉर्ट ऑफ रश इनटू इट एंड आपको हो जाता है. एंड दिस वन सीम्स लाइक ये यू नो बड़ी इंजरी लग रही थी, क्योंकि उसके बाद उसके पैर नहीं लग रहा था. He just walked off. वेदर का भी एक एलिमेंट है. वेदर का एलिमेंट भी है. ठंडा अक्सर आप जब ठंड और एकदम आपकी बॉडी जो है, आपके पास 3-4 ओवर बॉल नहीं आया और सडनली आपके पास बॉल आ गया, तो आप एकदम से मूव करते हैं और उसके बाद जो है आपको इंजरी हो सकती है, एज वसीम भाई सेड. तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद बीइंग सो फिट और नॉट. Fascination with cold weather and ठंड. You're from England. वो भी आज बात है नहीं, आज बात आई थिंक ठीक है, डेविड मिलान आ रही है ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਾਲ शोएब कपड़ा वाज जस्ट किडिंग, बट एक्चुअली ठीक कह रहा है कि ठंड में ऑब्वियसली मसल्स, जब कई जगह आप 2-1 ओवर खड़े रहो, एक जगह ज़्यादा मूवमेंट ना हो और सडन मूव हो, तो ऑब्वियसली गर्मी में तो जिस्म खुला रहता है, बट ठंड में ऑब्वियसली True that. पड़ता है. Absolutely. Let's talk about the Indian bowling, because जो मैचअप होगा इंग्लिश बैटर्स का और इंडियन बॉलर्स का, इंडियन बॉलिंग हैज लुक्ड रियली गुड इन दिस टूर्नामेंट. मिसबा, बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मैचअप भी है, भुवनेश्वर कुमार ने बड़ी दफ़ा आउट किया हुआ है जॉश बटलर को. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नया बॉल दोनों तरफ से वो स्विंग करने वाले हैं उनके. अर्शदीप अंदर लाता है और भुवनेश्वर कुमार दोनों करता है. बिल्कुल, बोवी भी, और एरिया बहुत अच्छा है. तो स्पेशली ऐसे बैट्समैन जैसे बटलर है, वो टाइम लेता है, उसको थोड़े से 6-7-8 बॉल चाहिए होते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट. उनका जो कम्बिनेशन है, दूसरी तरफ से एलेक्स हेल्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, वो अग्रेसिव खेलता है. तो आई थिंक की बैटर्स हैं ये दोनों इंग्लैंड के लिए, और इनमें से किसी एक का 70 से 80 रन करना बड़ा ज़रूरी है. बट इंडिया की बॉलिंग यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट होगी. अर्ली विकेट्स अगर वो ले लेते हैं और उनमें एबिलिटी है दोनों में, तो ये पहली हर्डल होगी इंग्लैंड के लिए. प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया अगर बड़ा स्कोर करना है तो नए बॉल से कैसे निकलना है. इंडियन बॉल के इतना बॉल यहाँ पे एडिलेड में इतना बॉल कोई स्विंग होगा. आई मीन मेलबर्न आई कैन अंडरस्टैंड, पर्थ में भी गेंद मूव अराउंड हुआ था. यहाँ पे there is every chance that it might not swing the way Arshdeep swing कर रहा था बॉल को. It might not swing that much, so it might just be a little bit easier for the English team. But I don't know, वकार भाई आप इसको थोड़ा सा वसीम और आप ज़्यादा बताएंगे. मैंने देखा है कि स्पेशली ये इंडियन जो बॉलर हैं, वो जिस तरीके से भी करता है, जहाँ पे भी करते हैं, उनका 2 से 3 ओवर बॉल स्विंग होता है. भुवनेश्वर कुमार का मैंने हर जगह जहाँ पे किसी का बॉल स्विंग नहीं हुआ, उसका अर्ली ऑन पहले 2 ओवर जो वो नए बॉल से करता है, वो और यूजुअली ठीक ठाक उसका T20 में नहीं देखते. देखो यहाँ भी जिस तरीके से उसकी लाइन द बैक ऑफ अ लेंथ लंबा होता है, पूरा बाहर निकल के ऐसे अंदर आए. देखो ना, इंडिया में भी हम भी खेले हैं इसको, तो ये बाकायदा इसका शेप बनती है. It's because he uses his wrist. Presentation of the seam is so beautiful. It's a bit like Anderson. और wrist भी use करता है. एंडरसन को भी आप देखेंगे ना, एंडरसन भी just he brings down the seam very nicely.
उसमें ज़रा भी आपको फ़र्क नहीं दिखता। और फिर क्या कहता है कि ये बॉल का जो होता है कि आप when you release the ball, wrist comes into play ना, तो wrist बड़े ऐसे मोमेंट पे wrist आती है नीचे कि जिसमें बॉल को बैक स्पिन मिलता है, राइट, एंड दैट बैक स्पिन ऑल्सो मेक द बॉल स्विंग अ लिटिल बिट। जो भी बॉलर जैसे डेल स्टेन था ना, डेल स्टेन पेस भी थी और देन ही यूज्ड टू गिव दैट बिग दैट बैक स्पिन ऑन इट। और बैक स्पिन के साथ जब आप सीम को सीधा या उसको हल्का सा टिल्टेड टुवर्ड जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं, अगर आउट स्विंग है तो अगर हल्का सा बाहर रखेंगे तो बॉल विल मूव लॉट मोर देन दी अदर्स। लाइक शाहीन को आप देखते हैं ना, शाहीन जब छोड़ता है बॉल, अगर आप उसको वो जो हॉकाई वाला कैमरा है अगर वो दिखाता है तो कैसी सीम जाती है, एंड देन लास्ट सेकंड इट जस्ट डिप्स बैक। सो हाउ कम इस फॉर्मेट में स्पेशली वाइट बॉल से बहुत कम स्विंग देखा है। अगर एक दो बॉलर का नाम ही आता है स्ट्रेट अवे T20 फॉर्मेट में, एक तो भुवनेश्वर का तो स्ट्रेट अवे टॉप ऑफ द लेडर है, कोई भी पिच हो उसका बॉल नया बॉल स्विंग होता है। इसका मतलब स्विंग करने वाला बॉलर स्विंग कर सकता है if he wants to. Definitely, it's all in your hand, it's all in your कि आप किस तरह प्रेजेंट करते हो सीम। और ऑफ कोर्स भुवी का ये है कि भुवी अब is got lots of experience, so he understands the batsman really well. और इंडिया एक वाहिद टीम है जो कि अर्ली ऑन बॉल को, या पाकिस्तानी शाहीन है, अर्ली ऑन गेंद को आगे फेंकते हैं। जब आप आगे फेंकते हो और प्रेजेंटेशन सीम की अच्छी करते हो तो गेंद फिर स्विंग होता है, एंड दे लुक टू थ्रेटन द स्टंप्स। ऐसा तो नहीं होता कि कुछ बॉलर्स जो हैं उनके पास कंट्रोल है, एज वकार भाई सेट, कि वो बॉल को स्विंग भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, बट वो एक फेयर आ जाता है यार मैं अगर स्विंग कराने गया तो मुझे मार पड़ जाएगी। मैं आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। अगले दिन इंग्लैंड जब मैच खेल रही थी, नया बॉल स्टोक्स ने किया था और पहला बॉल इतना खूबसूरत आउट स्विंग हुआ, उसके बाद वी ऑल थॉट ओके नाउ वी डूइंग। सो व्हाट हैपेंस इज कि उसके बाद आप फॉरन यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। आप जो ही आप कोई नई चीज़ करने जाते हो तो आपकी रिस्ट जो पोजीशन है ना वो चेंज होती है और बॉल स्विंग नहीं होता। एंड देन even if you try to come back to the first one, it becomes a little bit difficult because आपको चौका लग जाता है या आप ऑफलाइन हो जाते हो। और समटाइम आप ये भी करते हो कि आप जूम देखते हो ना कि बड़ा स्विंग हो तो आप थोड़े से ग्रीडी होके यू गो टुवर्ड मिडल लेग कि मैं यहाँ से उसको आउट स्विंग करूँ, और कई दफ़ा फिर आप ज़्यादा पुश कर देते हो हाथ को तो वहाँ से स्विंग नहीं होता, एंड देन एक दफ़ा बाउंड्री लग जाए तो यू ऑटोमेटिकली बिकम डिफेंसिव, यू विथड्रॉ विद दैट। ऑलराइट दोस्तों, इस मौके पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा राइट हियर ऑन द पेविलियन। यू वाचिंग ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी सी यू ऑन द अदर साइड। Well, welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhr. You're watching A Sports and Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. You can also watch us on the Airwise app. I've got Shoaib Malik, Ms. Paul Haq, Waqar, Younis and Wasim Akram with me in the studio. We're talking about the second semi-final. It is England versus India. We were talking about the Indian bowlers. अभी हम उनकी बात कर रहे थे. Let's talk about the Indian batting lineup, which is just bowling में आप काफी छोड़ गए। अच्छा, actually let's talk about the Indian spinners as well and the other bowlers. I think अक्षर पटेल अभी तक तो वो इतना रोल उनका नहीं आया, बट अश्विन और अक्षर पटेल जो है इस स्पेशली पिच पे अगेंस्ट इंग्लैंड हो सकता है पावर प्ले में नॉर्मली वो गेंद करते हैं। has been bowling quite well actually. लास्ट गेम में bowled beautifully. I think अक्षर पटेल looking at the batting, England दोनों राइट हैंडर आएंगे तो they might use him with the new ball. चेंज करते हैं इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड स्ट्रेटजी अपनी, तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा स्पिनर्स का यहाँ पे, और कंडीशंस भी उनको सूट कर रही हैं, तो लेट्स सी उनको कैरी कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि लेटर पार्ट इन द टूर्नामेंट जब पिचेस यूज्ड होती हैं, स्लो पिचेस आ जाती हैं, फिर नॉर्मली जो फॉरेन टीम्स के साथ आपके मैचेस होते हैं तो आपके स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा वो स्टार्ट से बढ़ जाता है। आई थिंक इट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर इंग्लैंड कि वो कैसे खेलते हैं और इंडिया के स्पिनर कैसे बॉलिंग करते हैं, और मे बी दे इंक्लूड लेग स्पिनर। इंडियन जो बॉलिंग है ना, दे वेरी गुड बॉलिंग अटैक। हो ये रहा है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक होता है ना इंश्योरेंस पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश करते हैं बाय प्लेइंग अक्षर पटेल। आई थिंक दे शुड गो एंड प्ले इंस्टेड ऑफ दैट थिंकिंग कि जो लंबी बैटिंग कर लें और लंबे हम लोग, क्योंकि इनके ऊपर के चारों बैट्समैन जो पांचों बैट्समैन हैं दे आर इन ग्रेट नेक, यू नो,
Even Hardik Pandya is looking really good. So batting आपकी इतनी अच्छी form में हो तो I don't think you should think too much into the extending the batting. So I would say Chahal might just get a go today because leggy on a worn pitch. And that too he'll against be England? that too against England. That might But be मुश्किल हो जाएगा वो इसलिए हो जाएगा side boundaries are small you're I playing in know, but Adelaide it's a knockout game. that Googly It's might a come risk. into play. Googly against the Googly is not like that great Effective. And another worry, not worry for India, but I suppose question mark होगा कि किसको खिलाएं कीपर कार्तिक को के पंट को बिकॉज पिछले मैच में पंट खेला था कार्तिक को रेस्ट कराया था या उनको निगल थी आई डोंट नो वो इसलिए वसीम भाई वो कर रहे हैं दिनेश कार्तिक इसलिए खेल रहे हैं एज अ फिनिशर और क्योंकि ऋषभ पंत अगर खेलेंगे तो वो खेलेंगे 4 या 5 नंबर पे लेकिन ये जो दिनेश कार्तिक है ये कभी 6 पे आते हैं कभी 7 पे आते हैं उस सिचुएशन को देख के कि मैच किस जगह पे खड़ा हुआ है तो आई गेस उनके उन नंबर्स के लिए मुझे लगता है कि उनके बैट्समैन जो है वेल सेटल्ड और वो कार्तिक के साथ ही जाएंगे अच्छा हमने सॉरी हम बॉलर्स ही की बात कर रहे थे बट लेट्स नॉट फॉरगेट शामी आई मीन ही इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर एब्सोल्युटली और उसको पता नहीं उन्होंने T20 में पहले रखा क्यों नहीं था अब ये लास्ट मिनट पे आया किसी इंजरी की वजह से आया वो स्क्वाड में बुमराह इंजर्ड हुए बुमराह की इंजरी की वजह से आया बट ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड एनीवे ही इज कंसिस्टेंटली टेकिंग विकेट्स इन ऑल द फॉर्मेट्स फॉर इंडिया he presents seam beautifully every time you see his bowling उसकी सीम बिल्कुल स्ट्रेट एज एन एरो और जाके लगती है अराउंड द विकेट स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस Conditions क्योंकि वो हार्ड लेंथ पे बॉल करता है और बड़ा मुश्किल होता है उसका बॉल हम 2015 में वर्ल्ड कप में खेले हैं तो ही वाज प्रोबेबली वन बॉलर जिसको सबसे मुश्किल होता था वहाँ खेलना इवन एडलेड में इनके अगेंस्ट क्योंकि वो बड़ा हैवी बॉल होता है उसको आप इधर क्रॉस भी इतने आराम से नहीं लगता पेस अच्छी है वो आई थिंक हिज स्ट्रेंथ तो अभी भी इस वर्ल्ड कप में भी जहाँ पे भी खेले हैं और अच्छी बॉलिंग की लेट्स सी बट इंग्लैंड को देखते हुए आई डोंट नो कि क्या करेंगे वो मे बी पे हारिस रऊफ टफ ओवर्स करते हैं वकार भाई हमेशा एम्फसाइज करते हैं उस चीज़ पे इसी तरह मोहम्मद शमी भी इस कॉम्बिनेशन से बॉलिंग कॉम्बिनेशन से लेंथ कंसिस्टेंटली बेहतर है रहा हारिस से क्योंकि नया बॉल नहीं कर रहे नया बॉल नहीं करता ना वो शमी अगर नया बॉल करते हैं तो जैसे आप कह रहे हैं सीम प्रेजेंट करते हैं उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है लेकिन जैसे भूवी हैं या अर्शदीप हैं वो नया बॉल कर रहे हैं यहाँ पे तो इस वजह से शमी को वो आके थर्ड सीमर जो है वो रोल करना पड़ रहा है जिसकी वजह से वो आइडियल एंड कंडीशंस पे जैसे मिसबा भाई ने कहा कि वो वहाँ हिट द डेक हार्ड वाला जो है ना वो बॉलर चलता है जिसके पास पेस हो स्पेशली व्हेन यू आर बॉलिंग विद अ ओल्डर बॉल आई थिंक ओवरऑल वसीम में जो कम्बिनेशन है ज़्यादातर टीम्स को वैसे ही है कि आप कोशिश करते हैं कि आइडियल है लेफ्ट आर्म सीमर जो कि अंदर बॉल ला सके राइट हैंडर जो अवे स्विंग कर सके अगर दोनों स्विंग कर सकता है और फिर तीसरा जो सीमर है नॉर्मली जो टीम्स में खेल रहा है जैसे वुड आते हैं या हारिस आता है पाकिस्तान की तरफ से वो थोड़ा सा पेसी लोकी फर्गसन जो कि न्यूजीलैंड के लिए वो आके वो हार्ड लेंथ पे सर्कल खुलता है तो स्क्वायर बाउंड्रीज़ को आप यूज़ करने के लिए और उस बाउंस को यूज़ करने के लिए नॉर्मली जो टीमों का कम्बिनेशन है वो ऐसे है कि तीसरा बॉलर इवन हार्दिक पांड्या भी जब बॉल करते हैं तो वो भी इन टू द पिच करते हैं ज़्यादा आई थिंक ओवरऑल कंडीशंस की वजह से भी ऐसी किसी भी मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा किसी भी यंगस्टर ने सीम का हम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बात करते हैं अब जैसे फॉर इंस्टेंस वकार था जब मैं था अब आजकल आप देख रहे हैं शामी की हम बात कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस या शाहीन की बात कर रहे हैं ये बॉलर वो हैं दोनों जो जिनका जब भी आप देखेंगे एंडरसन है फॉर इंस्टेंस जब भी आएंगे ना जैसे भी इन स्विंग करनी है चाहे आउट स्विंग करनी है टिल्ट करके इनकी लगेगी सीम ही नीचे सो आप यंग बॉलर मेक श्योर कि आप जब नेट में बॉलिंग करो तो जब ठप्पा लगे आपका तो हर दफ़ा सीम पे लगे देन यू विल बी एबल टू स्विंग लॉट मोर और फिर रिस्ट काम आती है लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि जितने ये स्विंग वाले बॉलर हैं या सीम बॉलर हैं ये ओल्डर बॉल के साथ दे आर स्ट्रगलिंग इन दिस फॉर्मेट तो ओल्डर बॉल के साथ क्या करना चाहिए सेमी न्यू बॉल जी इट इज़ डिफिकल्ट सेमी न्यू बॉल बिकॉज इट डजंट स्विंग सो दैट्स वेयर द एक्सपीरियंस एंड द स्ट्रीट स्मार्टनेस कम्स इन बैट्समैन को रीड करना सिचुएशन अवेयरनेस बैक ऑफ अ लेंथ करना है इसको उस वक्त मैं 19वां ओवर कर रहा हूँ या मैं 12वां ओवर कर रहा हूँ या ऑपोजिशन की विकेटें चाहिए या उनको हमने कंटेन करना है ये सारी चीज़ें बड़ा फैक्टर मैटर करती हैं जी हाँ बिल्कुल करती हैं जी वकार शबी क्योंकि T20 क्रिकेट फॉर्मेट इतना फास्ट है
कि इसमें आप यस नया बॉल आप थोड़ा सा आप यूटिलाइज कर सकते हो कि सीम हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। जब बीच का जो ओवर होते हैं मेनली स्पिनर्स करते हैं, लेकिन अगर किसी को आपको जब पड़ जाती है मुसीबत या शामी को वापस लाना पड़ता है या हारिस जब बॉल करने आता है, देन T20 क्रिकेट में यू हैव टू बी स्मार्टर, यू हैव टू हैव दोज वेरिएशंस। जो हम स्लो बॉल करते हैं ना, स्लो करो, वाइड यॉर्कर करो, क्योंकि आप दरमियान में उसी वक्त पेसर को, ऐसे पेसर को लेके आते हो जब आपको अशद विकेट की ज़रूरत होती है, या आपने हाँ सेट बैट्समैन खेले तो आपने फिर उसके लिए फिर आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं लेंथ से ऐसे आउट स्विंग करूंगा और वहाँ से मार के ऐसे होगा, क्योंकि वो सेट खड़ा है, वो आपको वहाँ से पकड़ लेगा, यू नो, जो कि हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में लेंथ पकड़ी जाती है। तो फिर क्या है, फिर देन यू हैव टू बी यू नो ब्रिंग दोज वेरिएशन बिकॉज बैट्समैन इज लुकिंग टू गो फॉर रन, सो देन you bring those slow deliveries, wide yorkers, full yorkers, I mean all those sort of things matters. I have one question, we have time? Yeah. मेरा क्वेश्चन है, आप दोनों भी कोचेस थे, आपको पता है प्रेजेंट क्रिकेट का मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ। मैंने सिर्फ दुनिया में एक बॉलर को देखा वो करते हुए, राइट आर्म फास्ट बॉलर को। अगर आपको T20 फॉर्मेट में मार पड़ी है, इधर से बॉलिंग कर रहे हो राइट हैंड को आप, यू नो, ओवर द विकेट एज अ राइट हैंडर, आप यॉर्कर भी कोशिश कर रहे हो, नहीं काबू आ रहा बैट्समैन, वो क्रॉस जा रहा है आपकी फाइन लेग ऊपर, आपको इधर मार रहा है, फिर हट के इधर मार रहा है। सो मुझे ये समझ नहीं आती आजकल के बॉलर, मैंने किसी को प्रैक्टिस करते नहीं देखा कि अराउंड द विकेट जाए, राइट हैंड अगर तू बैटिंग कर रहा है, अगर वाइड यॉर्कर करने हैं तो वहाँ से वाइड जाके ऑफ स्टंप के बाहर मारे, फील्ड बेशक वो पॉइंट पीछे ले ले, बट ये मैंने किसी को प्रैक्टिस करते नहीं देखा। इसमें आपको ये क्रॉस नहीं लगेगी। राइट, आपने कल बात की ना डीन जोन्स की, he was very animated and he was the one who always used to think these sort of tactics. ये कि आप थर्ड मैन पे एक थर्ड मैन रख लेते हो, एक वाइड थर्ड मैन रखते हो, एक एक्स्ट्रा कवर आप अपने चारों इधर रख लेते हो, एंड देन ये वाले ऊपर ले आते हो, फिर बिल्कुल वाइड, एंड देन he never used to mind the odd wide ball. अगर बाहर कर रहे हो तो वाइड भी हो जाती है एक दो तो ठीक है, but at least you're just away from the batsman's you know hitting zone. But then you have to be very accurate, क्योंकि आजकल जैसे अभी प्रैक्टिस से हाँ वो एक्यूरेसी आएगी प्रैक्टिस से ही, लेकिन आजकल इतने बैट्समैन आ गए हैं कि आपने परसों देखा कि सूर्य कुमार यादव ने ही ऑलमोस्ट पिक दैट बॉल अप फ्रॉम आउटसाइड द दूसरी पिच से उसने ला के एंड ही पिक्ड इट अप एंड हिट इट। सो आई मीन गेम अगर बॉलर्स के लिए इवॉल्व हो रही है तो बैट्समैन के लिए उससे ज़्यादा हो रही है। सॉरी, आपको प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए एज अ बॉलर के, अब आपका जैसे आपने एग्जांपल दी सूर्य कुमार यादव की कि फाइन लेग वाज अप, स्क्वायर लेग वाज अप, प्रेडिक्टेबल था बॉलर कि मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप करूंगा। अब आपको पता है कि वो आपको यहाँ जाके मार रहा है, तो डोंट यू थिंक एज अ बॉलर कि चांस लो, स्टंप्स में जाओ, कोई मसला नहीं अगर वो ऊपर है फील्डर। यू गोटा बी ब्रेव इनफ एज अ बॉलर। या श्योर, अभी अगर आप सूर्य कुमार यादव को देखोगे तो ही मूव्ड वेरी लेट। yeah, it's very difficult. Look at this one. That's the one I'm talking about. I mean, this is like a wide Yorker. Yeah. Oh my God. This was almost from the next pitch. So I mean, इसके लिए आपको जिगरा भी बड़ा चाहिए, बहुत जिगरा शॉट चाहिए। मारने के लिए। You would know as a present batsman, इसके लिए जिगरे से मुराद कि you need to have a, you know, big heart, दलेर होना पड़ेगा। कंफ्यूज करने के लिए बैट्समैन को, वो तो वैसे भी मार रहा है ना आपको, रेगुलर शॉट मार रहा है, कल शाहीन कंफ्यूज नहीं कर रहा। कल शाहीन ने बहुत अच्छा बॉल किया था, स्पेशली विलियमसन को। जब विलियमसन ऐसे गया ना था, ही जस्ट ब्रोक हिज पेस, क्योंकि अगर पेस जब टूट जाती है तो देन वो पूरा होता है पेस को यूटिलाइज करने के, एंड देन आपकी टाइमिंग खराब हो जाती है। वकार भाई, ये सिचुएशन हमारे साथ 2013 की सीरीज़ में थी अगेंस्ट AB डिविलियर्स, क्योंकि वो हर तरफ खेलता था और उस टाइम पे पावर प्ले होता था, एंड के ओवर्स में 3 फील्डर सिर्फ आप पीछे कर सकते हैं जी, लास्ट जो बैटिंग पावर प्ले होता था। तो हमने यही उस टाइम पे किया कि भाई इस पे आप जो है वो ये वाली फील्ड नहीं ले सकते कि आप सामने का कोई फील्डर पीछे। वी यूज्ड टू जस्ट सेट अ नॉर्मल फील्ड, फाइन लेग, स्क्वायर लेग, थर्ड मैन सामने ऊपर, एंड जस्ट बॉल, नॉर्मल बॉल। आपने अगर यॉर्कर भी करना तो इसी फील्ड में करना। उसको ये आपने, क्योंकि जब आप फील्ड डिफरेंट सेट करते थे तो वो इतना जल्दी एंटिसिपेट करता था कि वो बिफोर यू बॉल अ बॉल, वो उसको पता होता था कि अब ये गेंद आने लगा है, मैंने ये वाली शॉट की। लेकिन आप ये जो हम टैक्टिक्स बता रहे हैं ये आप उस वक्त यूज़ करते हो जब आपको ओवर में 12-12, 15-15 हो रहा है, तो देयर इज नो वे आउट। देन ओके यू से ओके एक साइड में पैक कर लेता हूँ, आई विल बॉल इन दैट जोन एंड देन
hope for the best. Yeah, wish me luck. Wasim, when you started this conversation, you said कि वो round the wicket जाके और wide yorkers करने वाला. You have only seen one bowler practice. Yeah, you never told us who the Bravo. bowler. DJ Bravo. DJ. He does this regular basis, if you remember. Yeah, Tim Southee used to do Tim that Southee in used the to do that. matches. International cricket, he used to bowl those Yorkers के जब बिल्कुल ही हाथ से निकलना शुरू हो गया काम तो round the wicket आके off stump के बाहर जो है Yorkers करना. So. Yeah. Well, anyway, it's going to be an interesting game ahead of us. But right now, let's take a look at the road to the semi-finals for India. When India plays Pakistan, so atmosphere is always amazing. Doesn't matter wherever in the world. If it's India or Pakistan, I'm sure it's going to be almost different what we encountered here, but it was amazing. Has to go without scoring. Top edge. This could be out. This is out. The way he took the 2 wickets, it totally set the tone for us, especially when you can get those 2 players out in the Pakistan team. Things can be totally different for them. It's 31 for 4. When you're chasing looking to chase 160 and you lose 4 wickets in 6 overs, so of course, you know, it was a pressure time. With Virat in there, you always believe that the game is on, and the kind of innings he was playing that day. And of course, those 2 shots will always be talked about. Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Stand and deliver. I think he's freak at the moment. The way he's batting, he's hitting everywhere. In the park, so I don't know where to bowl him if I have to bowl. But I mean, whatever I say about him, it's gonna be less. Gave himself room. That's a monster hit. David Miller. He's unstoppable at the moment. Is Aiden Akram. I don't think we could have done much different because I think we bowled well. I think sometimes you have to give credit to the batsmen as well, the way they batted, especially in the Perth. It wasn't easy for batsmen, but the way they batted through the last over, especially Miller, I think credit goes to them. I think it was a special knock. The way we started, it wasn't easy for batsmen. We took our time in the first 10 and the later on, the way he accelerated in the last few overs, I think it was a perfect setup for us. Lyndon Das is lighting up the Adelaide Oval here. It was one of those innings where you can give credit to him, but when the rain comes, we knew that we can turn the things around, and the way KL run him out, I think after that things totally changed for us. There's another slip, they're going to go, the bowler's in, that's brilliant! Would you believe it? KL Rahul! That was a fantastic piece, not only skill-wise, but looking at the whole match scenario. But that is something I'm not surprised with KL because we've been hitting those stumps quite regularly in the practice. The positive thing for me is that I don't believe that as a batting unit we've still hit our peak. There are still areas we can get better at, and that's a good thing. Playing the final of a World Cup, it means a lot to everyone, and I think we have been preparing for that. We want to play the final, but we have to give our best to defeat England because we know how they are good as opponents. So yes, we have to do everything right to defeat them. Yeah, that's the road to the semi-finals for India. Virat Kohli की बात हो रही थी, and of course that innings against Pakistan was really special. We're going to talk about that, but we're going to take a break right now here in the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ARY's app. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Today we're taking you to Adelaide, जहाँ पर England बामुकाबला India इस मैच के हवाले से बात कर रहे थे. Let's talk about the Indian batting now. That special innings by Virat Kohli will play in the minds of a lot of Pakistanis for a very long time against one of the best bowling attacks. It's not the first time he has done that. That's true. I mean, he's a class act. इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले आने से पहले he was under immense pressure जब एशिया कप में उससे रन्स नहीं हो रहे थे. एशिया कप में क्या उससे पहले भी
तकरीबन 2-2.5 साल से उससे सेंचुरी भी नहीं हुई थी, जो बंदा हर तीसरे मैच में सेंचुरी करता था. तो I mean, you know, it clearly shows the class of a guy. You know, a very complete player, very aggressive player. Any format, वो टेस्ट मैच भी इसी तरीके से खेलता है. He is going to be very dangerous for England team. They got to really get rid of him early. You can't really sort of keep bogging him down because he might, if they lose wickets, he might just play a little slowly. But then आपने देखा against Pakistan, he had so much belief that you know, they can always bounce back. So he's one of the most dangerous batsmen in the lineup. Yeah, there's no question about that. For you, Wasim, इनका बड़ा belief था उसे, and on the post match on that match, Virat said that it was actually Pandya who was consistently saying, "Believe, Virat, believe. You can do it. You can do it. We can do it." Yeah. How valuable is having a good partner on the other end when you're in great nick? Pandya has been a very instrumental in white ball for India. He's got pace, 140 plus से bowling करता है, batting में he's an impact player, a game changer, और he's a gun fielder. So he's a complete. We talk about all rounders, जो तीनों चीज़ों में मुकम्मल अबूर हो, that's him. And obviously जब आप होते हो अंदर सीनियर प्लेयर को, अपने एक्स कैप्टन को आप पूरी हल्लाशेरी देते हो जैसे हम कहते हैं. और कोहली की आप देख लें, ये एडलेड में जो उसका रैकेट है, जितने वो मैचेस खेला है कोहली, बिल्कुल नहीं किया. 5 मैचों में 907 स्कोर है, ऑलमोस्ट 76 की एवरेज है और 5 सेंचुरी हैं. So that's Virat Kohli at only Adelaide. Just Adelaide. One of his favorite he's venues. Back in form. He's been through a rough patch for about, say, 6 months, maybe less. But bड़ी normal saying है, perform is temporary, class is forever. T20 cricket में highest average in Australia. ये शुरू जब वर्ल्ड कप हुआ तो उस टाइम 83 था. अब तो और ज़्यादा नट आउट इनिंग्स खेले तो अब 83 से भी ज़्यादा हो गया है. I think कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है. He loves playing in Australia. बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है और I think clearly he is a threat for any मुझे वो opposition. ईयर याद नहीं आ रहा. I was commentating with Star, ESPN Star. It was a game at Hobart, I think. They were playing Sri Lanka and Virat Kohli was नया टीम में आया था. Nobody knew कि इतना जाके ग्रेट बन जाएगा. But इसमें टैलेंट था. उसने वहाँ 100 किया था एक. उसने मलिंगा को जो चौके मारे थे, मलिंगा वाज एट हिज पीक. राइट. क्या वो यॉर्कर कर रहा था, स्पॉट ऑन, बट दिस गाय वाज जस्ट हिटिंग इट हियर, मिड विकेट, इनसाइड आउट. आई मीन वहाँ ही पता लग गया था कि दिस गाय गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल. 2007 he was in रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. पहला जो IPL का सीज़न था. सो अंडर 19 से आया था और परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, बट जिस तरीके से उस पर इन्वेस्ट किया इंडिया, पूरा उसको सपोर्ट किया उन्होंने और ऑलमोस्ट सारे नंबर्स पे भी खेला. और उसी टाइम पे सारे यही कहते थे कि ये जाके आगे चल के बहुत रिकॉर्ड्स बनाएगा और बहुत रिकॉर्ड्स तोड़ेगा. हालांकि वो IPL बड़ा मुश्किल था उनके लिए. विद टाइम प्रूव हुआ कि उसने he's become a different player. Rohit Sharma and KL Rahul, the opening batting for India, a little bit of worry there, Waqar. Maybe a little bit. ग्लिम्स ज़रूर शो किए हैं उन्होंने. मे बी बड़े रन शायद उतने नहीं किए जितने एक्सपेक्टेड थे उनसे, क्योंकि कंडीशंस आर हार्ड. यू नो, ओपनर्स ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड कप में देखेंगे तो ओपनर्स हैव स्ट्रगल्ड इन दिस unless or until you take long time in the middle and then start playing your national game. जाते ही बड़ी शॉट्स लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल है. ये एडलेड प्रॉब्ली पिच ऐसी है, शेबी यू प्रॉब्ली टेल अस बेटर, कि ये ऐसी पिच है यहाँ पे आप फ्रॉम द वर्ड गो यू कैन प्ले दोज शॉट्स. मेरे ख्याल में KL Rahul, he's been gained his form. Yes, he scored 250s in his last 2 games. So I guess अब Rohit Sharma is the only batter in the first 4 जिनके थोड़ा सा जो है वो runs आने ज़रूरी हैं. And of course he's a quality player when he plays. फिर सारी चीज़ें और सारे प्लेयर्स जो है वो छुप जाते हैं. So I guess he's the only worry they have in their dressing room is Rohit Sharma. और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, वो है सूर्या कुमार यादव. एंड ही इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल इन टुडेज गेम बिकॉज लास्ट 5 इनिंग्स में 260 रन है अगेंस्ट इंग्लैंड विद द एवरेज ऑफ 52 एंड द स्ट्राइक रेट of 195. Wow. So he is going to be a massive thing. That's England is one of those sides that they don't like facing India.
बिकॉज उनका विन जो परसेंटेज है इज जस्ट अंडर 46%. आखिरी सी में पढ़ देता है. इसीलिए वो भेज रहे थे. मैं कह रहा पेपर ले जी यार. अच्छा Just when Waqar was like, I might get one फखर भाई set. मजे की बात पता है क्या है? क्योंकि आप शुरू करते हैं वसीम भाई से, ठीक है, फिर इधर फिर उधर, इसीलिए मैं स्टैट्स वाला ना सेकंड लास्ट पेज देखता हूँ. मैं पहले 4-5 देखते ही नहीं. अच्छा मुझे मैं कोई लाइनें नहीं The जानता. stat is just for your reference so that you guys can talk, right? I mean, it's not that you have to read the stats out. Yeah, exactly. We भाई have आप राइट टाइम पे ना, तो इसीलिए राइट टाइम पे देखे आया कि नहीं आया? बिल्कुल बेहतरीन आया है. Good timing. मलिक एक Perfect चीज़ timing. मैं रोहित शर्मा के हवाले से थोड़ा मुझे लगता है कि पिछले अगर आप लास्ट जितने भी मैचेस हैं उनमें देखें तो वो चेंज किया है रोल उन्होंने. ही इज़ द वन. केएल राहुल थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर विराट कोहली भी टाइम लेता है, बट रिसेंटली रोहित शर्मा फ्रॉम बॉल 1 वो एक आधे मैच में थोड़ा सा टाइम उन्होंने लिया है. उसके अलावा आते ही वो चार्ज करते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ताकि दूसरे बैट्समैनों को थोड़ा सा टाइम मिले. इसलिए भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी वो कंसिस्टेंसी है वो उस तरह नहीं है जैसे नॉर्मली होती थी. आई थिंक इट्स द टीम प्लान बेसिकली. और जो मुश्किल काम था उसने एज अ कैप्टन वो लिया है कि कोई मसला नहीं. Very true. आई विल गो एंड जस्ट गो ऑन. आई थिंक कप्तान का ये होता है कि अगर कप्तान आपका ओपनर है और वो अगर इस तरह की टोन सेट करता है तो ऑफ कोर्स इट रब्स डाउन टू योर टीम आल्सो. अगर आपकी टीम भी फिर इसी तरह सोचती है कि जी वी गोना प्ले एग्रेसिव क्रिकेट, और ये सारे एग्रेसिव प्लेयर वैसे ही हैं, नेचुरली वेरी एग्रेसिव हैं, लेकिन अगर कप्तान आपका जाके इस तरह खेलना शुरू कर दे तो दैट रियली बड़ा इंकरेजमेंट मिलती है बाकी प्लेयरों को भी. स्पेसिफिकली व्हेन ही बिकेम कैप्टन T20 का, जो हमने पढ़ा है, जो हमें फेलो क्रिकेटर्स अभी एशिया कप में बताया कि जो उसने टेम्पलेट चेंज किया है उन्होंने. इसने क्या किया, डोंट वांट इन T20 फॉर्मेट अ प्लेयर गेटिंग 70 ऑफ 50 balls. I rather have a player who gets 30 of 12 balls. Yeah. So that's why they all go up. They want momentum. They want momentum. Yeah. And it's been working for them. It's just players getting the back from the captain. Yes, So yes. that's what matters. That आपके is- लीडर से जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, फिर आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं. ये कुछ लाइव इमेजेस आ रही हैं एडिलेड से. इंडियन टीम जो है वो ग्राउंड के अंदर इस वक्त आई है, गेटिंग वार्म्ड अप अ लिटिल बिट. तेरे को दिखाता हूँ. हां तेरे को दिखाता हूँ. That's what they're saying to each other. आजा बाजू में. So they're just walking into the Adelaide. Big day for India and for England, and it's going to be packed house there as Indian fans बड़े support करे उस पे जाते हैं. Yeah. I think fans, Pakistan, India, even England, they travel. Yeah. They do travel all over the world to support their team, and it's great to have your fans and be a pack house, goes without saying. मुझे वो याद है 2015 का, मैंने बताया था पहले भी, जो आप मैच खेल रहे थे इंडिया से Adelaide. Obviously, we don't want to remember that game because he got hammered. But the Adelaide is a very small town. Yeah. और उसकी एक ही स्ट्रीट है जिसमें सारे रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स भी उसकी अगली स्ट्रीट पे हैं. It was, I think वहाँ की कैपेसिटी थी 53,000 people of that game. पाकिस्तानी होंगे about 10 और 40 odd thousand were Indians, and every place was packed. It was great. Most of the teams worldwide ना उनके कुछ फ़ैन फॉलोइंग, जो कुछ फैंस हैं जो ट्रैवल करते हैं, बामी आर्मी है जैसे ऑस्ट्रेलिया से, इनकी भी स्वामी आर्मी है. इनकी तो खैर बहुत बड़ी स्वामी आर्मी है. ऑस्ट्रेलिया से मर्व ह्यूज लेके जाते हैं, पूरा ग्रुप लेके जाते हैं, 2 एलन बॉर्डर ग्रुप लेके जाता है. कल्चर में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया द टूर्स पे, लेकिन tours गेम्स पे पे जाते हैं. हमारी भी अब एक ग्रीन ब्रिगेड बन गई है पूरी. We have a green brigade where We you do? see, yeah, they have all इस दफ़ा these- मुझे चाचा नजर नहीं आया. आया चाचा was there. चाचा का ट्वीट चाचा आ गया was था प्रॉपर इंग्लिश. चाचा was there. फिर वो हमारे वो जो है अपना अली जी, वो क्या डिक्टेटर जो बनते हैं वाइट वाले जो पाकिस्तानी, साडा हल्क भी है. साडा हल्क भी होते हैं, you know. तो we've got- And you know, imagine it's a lot of effort. Like that shows the love of people have in this beautiful game. अपनी टीमों को वो कितना प्यार करते हैं. Imagine पूरा कॉस्ट्यूम पहनना, पूरा दिन, गर्मी हो सर्दी हो, पेंट करना. It's a lot of effort. Yeah. So hats off to you guys. And you know, जो आज वकार ने सजेस्ट की वार्डरोब हमारे लिए फाइनल के लिए, you know. ये तो पीला लाल. नहीं आज एक और वार्डरोब भी उन्होंने सजेस्ट की थी. वकार कल से देना हमें मशवरे. यार आप मुझे पहले ये पोस्ट तो दें. आप मुझे, मेरा मतलब अगर मैं कोई चीज़ कह देता हूँ कि यार ये पहनो या ये पहनते हैं, आप लोग सारे ही रल के पै जाते हो मैनू. You just got to relax for a little bit and trust. say a word. तू मेरे करीब बैठा ना तो मैं तेरे को देख रहा हूँ. I'm looking for some support here.
क्रिएटिव आइडियाज आपके कहाँ से आते हैं? यार जिस दिन आप लोगों ने आना है जर्दे बन के। आप मुझे ये बताइए कि आप जिस दिन आपने पीला पहना था सुबह 3 बजे 3:30 बजे तो बुरे लग रहे थे? वो तो शुक्र है नींद में तो पहन लिया हम लोगों ने। वैसे ही था जब आपको नंबर 3 भिजवाया था। चले फाइनल के लिए, वो भी भिजवाया था। फाइनल अच्छा फाइनल के लिए प्लीज आप लोग मुझे अभी से ही 3:30 सुबह से फाइनल के लिए आप लोग प्लीज मुझे अभी से ही ये We have to have a meeting about that because knowing you, you'll get वसीम भाई आप इतना तो कर सकते हरा रंग पाकिस्तान वो जो कल आपने सूप नहीं मंगाया था ग्रीन कलर का तो कहने ने आज उधर रोड लेने देखो कलर कुछ चेंज हो जाए। आपको मुझे फाइनल की प्लीज अथॉरिटी देनी पड़ेगी। आप लोग दे दें मुझे। चलो यार फाइनल में पाकिस्तान पहुंचे इतनी खुशी में, आप इतनी खुशी में ही आप ये कह देंगे यार जा जो मर्जी पवा दे खुला गोटे के नारियों वाले जनाब जोड़े आ रहे हैं। मैं कुछ करना तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। Misbah saying I refuse to take such a big risk. मिसबा ने तो रिफ्यूज करना ही होंगे ना चाहते हैं। Don't worry about it. उन्हें क्या सी मैं गल सुनागा कदी-कदी। And with that we're going to take a break right here in the pavilion. See you on the other side. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर। आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY's app our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We're talking about the second semi-final about to happen in Adelaide. It's India versus England. और इस वक्त हमारे साथ इंडियन कैंप से मौजूद हैं हार्दिक पांड्या। Hardik, they've just opened the gates. You've just marched across the ground. Great atmosphere building already. How much are you looking forward to this one? Pretty excited. Semi-final of World Cup. We know now every game, every ball will matter a lot. So very excited, but at the same point of time, trying to keep everyone's nerve calm and making sure that we follow the processes which has gotten us here. I was going to ask you that because it's a day for pressure and it's a day for passion. Is it also a day for a bit of calmness and coolness from Hardik Pandya? Yeah, absolutely. I think a lot of people keep asking that how do we find yourself calm in difficult situation and all that. I think somewhere down the line that depends on the preparation. I think that calmness does not come by your mental strength or anything. It's just that if you prepare well and you kind of tick all the boxes and you are confident about your skill set and you know that if time comes you'll be able to perform. So I think that somewhere down the line will has given me the calmness which I've over the years got, and at the same point of time a lot of other cricketers as well. I guess the two lads batting ahead of you give you some calmness as well. Kohli and Surya Kumar Yadav, they're playing beautifully. Absolutely, sometimes I feel that either we are not batting well or they are just on a different planet, especially Surya as well. Virat, we have seen he's been doing this for years, as a lot of he did not score for a couple of months and a lot of people said a lot of things, but somewhere down the line we all knew that the kind of cricketer he is. And talking about Surya, I think in life he has got the opportunity to play the international cricket late. I think he should have played 2 years back when he made his debut. He should have played 2 years earlier than that, but I think God is really kind and he's getting exactly what he was supposed to go those 2 years. Well, I hope you get what you want this evening as well. Go well. Thank you, Nas. Pandya there now, that's really well spoken. और बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने वसीम के कामनेस जो है वो आती है आपकी प्रिपरेशन से और आपके कॉन्फिडेंस पे कि आपका स्किल है. Hit the nail on the head with that statement. If you are prepared, tick all the boxes, then calmness automatically comes. If you're not prepared, ये जनरल लाइफ का ही प्रिंसिपल है. अगर आप अपनी जॉब पे प्रिपेयर नहीं हो तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस रहेगा, आप काम नहीं रहोगे और आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी उससे. सूर्या कुमार यादव का उन्होंने बोला कि 2 साल पहले खेल जाना चाहिए था उनको. 2 साल डिले हुआ है उनका करियर. What do you say about that, Misbah? I think वो कह रहे हैं कि उस वक्त जब वो खेल रहा था पोटेंशियल था उसमें, बट फॉर समहाउ कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको वेट करना पड़ता है. पर मुझे ये लगता है कि वो जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है, हम कई दफ़ा कहते हैं कि टाइम ज़ाया हो, बट आई थिंक वो आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके आते हो, मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके आते हो, और वो जो प्रोसेस होता है, जो भी आप वो वेट करते हैं, उसमें आप और बेहतर प्लेयर बन के आते हैं. मुझे लगता है कि ठीक है उसका स्किल था, सारा कुछ था, बट आई थिंक द वे ही इज़ बैटिंग, ही इज़ जस्ट परफॉर्मिंग नाउ, और जैसे वो प्रेशर को हैंडल कर रहा है और जिस तरीके से वो ओवरऑल कंसिस्टेंसी है, वो शायद वो 2 साल की स्ट्रगल से और ज़्यादा मैच्योर हो गया जी. और एज अ टीम गाइस पता होता ना कि मैं टीम का प्लेयर हूँ, जब आप थे टीम में, जब आप भी थे, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. एक तो होता है कलेक्टिवली, कप्तान को पता होता है, कोच को, एक एज अ प्लेयर भी पता होता है ना कि हमारी टीम की स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो हम डिफेंड करेंगे, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है जब आप डिफेंड करते हो बिकॉज यू रन्स ऑन द बोर्ड. पर इंडिया की जो सक्सेस है दैट्स चेजिंग.
You know, their record is incredible. 19 मैचों में जो 16 ये जीते हैं चेज करके. So इससे कोई फर्क पड़ता है psychologically as a batsman, as a team? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन Because हमने तो आज तक जिंदगी में पाकिस्तान को चंगा चेज करते नहीं देखा. Last night and last year. में पाकिस्तान का चेजिंग हमारे दौर में स्पेशली. नहीं, अभी रिकॉर्ड चेजिंग का बुरा नहीं है. Yeah. उसमें मैं ये समझता हूँ वसीम भाई कि इफ़ यू प्लेइंग एज अ प्लेयर और थिंक टैंक जो है वो आपको बुलाता है मीटिंग्स में टू डिस्कस द प्लान कि हम किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान्स को, तो समझ में आता है. बट इफ़ यू प्लेइंग एज अ प्लेयर इट्स नॉट योर डोमेन टू एंटर. इट्स नॉट, बट इतनी बैक ऑफ अ माइंड कॉन्फिडेंस तो होता है ना एक चीज़ का. बिल्कुल होता है, और इसीलिए आई गेस उनकी परसेंटेज भी 84% है बैटिंग सेकंड, और 62 है व्हेन दे बैट फर्स्ट. सो आई गेस आई एम श्योर जो लीडर है या जो थिंक टैंक है वो ज़रूर ऐसा मैसेज देते होंगे ड्रेसिंग रूम में कि दिस इज़ व्हाट वी गोइंग टू डू, और फिर भी सारा शेयर होता होगा जिसकी वजह से उनका चेजिंग इतना जो है अच्छा है, एंड दे डोंट माइंड इवन चेजिंग व्हेन दे आर गेटिंग इनटू नॉकआउट स्टेजेस. सो आई गेस it shows that they have a lot of confidence within the dressing room. All right, we're going to have to take you to Adelaide now. It's time to take a look at the pitch. Here's the pitch report brought to you by Ensure. Right, time to have a look at the playing area here at the Adelaide Oval. And I tell you what, before we get there, it's important to speak about atmospheric conditions. It's a bit muggy, humidity, and sometimes that suggests a little bit of swing. As far as the dimensions are concerned, there are quirks here in Australia, and this ground particularly, well, is about long straight. 88, that's the straight boundary. Short, square. Today, the good thing is that we're actually smack bang in the middle. So it doesn't matter as far as left and right combinations. What's important, most important, is how this one's going to play. And a man alongside me here is Shane Watson, who's going to tell us all of that. What do you think, Watto? It looks like an absolute ripper. This is as good as a wicket I've seen for a long time. It's really hard. There's a nice little fleck of green grass as well, which means it's going to be really hold together very, very nicely. I'm going to go down. You've got to hear this. It is rock hard, so the ball is going to go through absolutely beautifully. The scores here in the first innings, average so far in this tournament, been 157, but this is going to be a high-scoring wicket. It's going to be beautiful. So the team who bats first, they're going to have to score big to give themselves a chance to be able to try and make sure that the opposition doesn't chase them down. Small square boundaries, but rock hard, और pitch पे थोड़ा सा घास है. मिसबा. हाँ, आपको ले जाते हैं वहाँ. तुसी उसे बकरियाँ चारनी है. एक स्टैट रह गया, एक स्टैट रह गया जो किसी ने नहीं पढ़ा. मैं पढ़ देता हूँ. ये है कि लास्ट 11 T20 एडिलेड में no team has ever won the match after winning the toss. ये कल पढ़ा था. ये कल नहीं, आज में. तो आई थिंक कि बड़ी डॉजी सिचुएशन है. पिछला मैच साउथ अफ्रीका ने भी पहले बॉलिंग की और 159 नहीं चेज हुआ, तो बड़ा मुश्किल होगा दोनों कप्तानों के लिए कि यहाँ पे करना क्या है. बेसिकली टॉस जीत के बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, तो इट्स बेटर टू जस्ट लूज द टॉस. जरा पिच में टिंज है, ग्रीन टिंज है. पिच तो ज़बरदस्त है. जो ओवरऑल जो ब्रिटिश मीडिया कह रहा है कि यूज्ड पिच है, इट्स नॉट राइट, बट इट लुक्स फाइन टू मी. बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा. जो लुक है और ग्रास कवर भी है, तो इसका मतलब है कि वो उस अच्छा गेंद आना चाहिए. और हार्ड भी लग रहा है. हार्ड वो जिस तरह वॉटसन उसको बता रहे थे, तो आई थिंक कि अच्छी बैटिंग के लिए अच्छी पिच है जो फिलहाल लग रहा है, जो नज़र आ रहा है, जो पिच रिपोर्ट भी आई है. क्या करना चाहिए वो जो टॉस जीत के? वरी थी, जो इंग्लैंड की वरी थी कि यूज पिच है और शायद स्लो पिच होगी, वैसे लग नहीं रहा कि उस तरह का कुछ चक्कर है. आई थिंक जो अच्छा खेलेगी टीम उसके लिए अपॉर्चुनिटी है जीतने की. कोई ऐसा एडवांटेज नज़र नहीं आ रहा किसी टीम को कि हाँ जी इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है फॉर द पिच. और टॉस भी आपके सामने है कि यहाँ पे पहले खेल के भी टीमें हारी हैं, चेज में भी हारी हैं, तो इट्स इवन. कोई वो एडवांटेज टॉस करी है यहाँ पे कि आप टॉस जीत के मैच ही जीत जाए जैसे सिडनी में. Yeah. All right. So that's the pitch report. Now let's talk about the English team. Of course हमने बात की डेविड मिलान जो है वो might not be playing. वो उनकी जगह जो है, आपने कहा कि फिल सॉल्ट पे बात.
tell he was really up for it. Felt the whole intensity in that game as a general went up. That'll be his 18th half-century in T20 international cricket. When we were bowling, I just felt like we just had it amongst us that we weren't going to lose that game. Even when they had a partnership, we stayed calm. People stood up. Stokes got a great wicket of Williamson. Goes, yes, gone. And that's a sign of a good team when the pressure's on you against a team who put in a really good performance against Australia. That's when the top side step up and show what they're about, and we felt that we did that really well against a tough New Zealand side. Comprehensive victory over the unbeaten New Zealand. Adil Rashid's 6 over, the last over of the power play, to only go for 2 or 3 runs for what he did, that really shifted the momentum for us, and then all the bowlers bounced back really, really well and set the game up for us batters in the second half. To have someone in your team who can bowl 96 mile an hour, I mean, that's just such a rare thing to have, and he's been indispensable for us this tournament. He's been outstanding, taken key wickets when we've needed, and put top quality batsmen under pressure with his pace. Having watched the pitch in the first innings, it looked like it got significantly harder once the ball got softer. The middle overs looked really difficult, so my plan was just to try and kill the game as early as possible, get way ahead of the run rate in the power play. Such a cool head under extreme pressure in a must-win game for English cricket. He put his hand up again, and it was a very impressive innings in difficult conditions throughout the middle overs. A chance to play in a World Cup final, something I thought that ship had sailed a few years ago, so pretty special feeling. All the guys here will be chomping at the bit to get out there and play in the final. Well, there you have it. The road to the semi-final for England. Waqar, Mark Wood, 90 miles per hour bowler, but he is a little doubtful today. How much will that dent in the English bowling? Yeah, अभी इसको दिखाने से पहला जो मैच उन्होंने दिखाया था वो वर्ल्ड कप 50 ओवर का था, तो और उसमें जो नज़र आ रहे थे प्लेयर, उनमें जो मेजर प्लेयर मिसिंग हैं जो कि T20 के एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर हैं, वो बेस्टो और जेसन रॉय जी। वो दोनों, बेस्टो का अनफिट होना, जेसन रॉय का ना होना, बेस्टो का बड़ा फ्रीक एक्सीडेंट हुआ था। मॉर्गन तो चलो रिटायर हो गया ना, बेस्टो का, you know what happened to him? No, he went to play golf between the test matches and he slipped. Wow. Broke his ligaments ankle के ऊपर से. He's out for 6 months or something. So I think those two not being there, इनको डेंटिंग वहाँ पे भी हुई है पहले, और फिर मिलान नहीं है। अब चलो मिलान का तो मैं फिर भी कहूँगा कि फिल सॉल्ट वो कहीं ना कहीं कमी पूरी कर देंगे। वुड की कमी पूरी करना मुश्किल होगी इनके लिए। वुड को कोशिश ये करेंगे कि ये लोग इसको फिट करने की कोशिश करें। अगर तो छोटा मोटा निगल है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वार्म अप में आज इस वक्त एडिलेड में आपकी इमेजेस आ रही हैं। अगर तो छोटा मोटा निगल है तो आई थिंक दे विल पुश हिम। हमें जो विकी इंफॉर्मेशन वसीम भाई जब ये इसको इंजरी हुई थी, इसने पहला ओवर किया था और पहले ओवर में इंजर्ड हो गया, देन ही वेंट अवे एंड देन ही केम बैक एंड ही बॉल्ड 3 ओवर्स। बट यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन दी उसमें विकी लिखा है कि मार्क वुड इज स्ट्रगलिंग विद मसल स्टिफनेस। वो थोड़ी स्टिफनेस हुई होगी, टाइटनेस होगी, बिकॉज ही उस दिन भी मैं कह रहा था ना कि बॉडी छोटी है, इंजन बड़ा है, तो उसमें कई दफ़ा फिर आपको ना यू जस्ट गेट दिस टाइटनेस इन मसल्स एंड देन दे डोंट वांट टू टेक रिस्क विद हिम बिकॉज he's their asset not only in this World Cup but आगे भी फ्यूचर के लिए भी। of course that's the thing, that's what I'm saying कि अगर उसको छोटी मोटी स्टिफनेस ही है तो they will probably rub him out and make sure that he gets on the park। उसको ये भी एक्सप्लेन कर दे कि आप और मिसबा दोनों इवन बैट्समैन प्रेजेंट प्लेयर भी कि 135 रफ्तार से 138 फिर उसके बाद 145 ऑनवर्ड्स, क्या डिफरेंस है इन दो पेसेस में? ओह मेजर डिफरेंस। आई मीन मैंने उस दिन भी बताया था कि जब वंस यू क्रॉस 145 then it is a nightmare for the batsman, especially जब आपको पास बाउंस भी हो और आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेल रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा था ना पाकिस्तानी बॉलर्स we got a really good unit। हमारे तीनों बॉलर जो ऐसे हैं कि जो 145 अपना क्या नाम है हारिस, तो he can go up to 150, और बाहर भी जो बैठा है स्नैन he is also 150 plus। so pace does matter इस फॉर्मेट में भी, क्योंकि pace gets you wickets also। so वुड का भी यही है कि वुड भी विकेट टेकर है। इनके बाकी जो हैं जितने भी मीडियम पेसर हैं, द स्मार्ट बॉलर्स, सैम करन वेरी स्मार्ट, वोक्स है। अच्छी बात यह है कि स्ट्रोक्स बॉलिंग कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ बिग एज इन द मिडल। spinners went around the park a little bit, but it's a big day, they all come charging।
Sorry, Shoaib? हम लोगों ने देखा लुकी फर्गसन, he's got pace. Yeah. But he's been hammered against Pakistan. तो स्लो पिच पे आपका जितना तेज बॉलर होगा उसको ज़्यादा चांसेस है रन होने के. तो अगर एडलेड में ये सिडनी टाइप का पिच हुआ स्लोअर साइड की तरफ तो जितना तेज बॉल आप कराते हैं उतना आसान होता है बैट्समैन के लिए रन्स बनाना. हमने बाबर ने भी देखा थ्रू द लाइन उनके शॉट्स लगे, जो 2 शॉट्स लगे फर्गसन को, उसके बाद बाबर वॉज अ डिफरेंट प्लेयर. सो ये भी हो सकता है कि अगर वुड ना खेले आज और ओवरऑल वुड को अच्छा खेलते हैं इंडियंस जो है, मैंने देखा है होम सीरीज़ में भी बहुत अच्छा खेले इवन इन इंग्लैंड, तो अगर क्रिस जॉर्डन आते हैं उनकी जगह तो एक डिफरेंट चीज़ भी आ सकती है टीम में और फ्रेश बंदा आएगा तो सब फर्क पड़ सकता है. Yes, you playing for India, for instance, argument's sake, and who would you rather face, Wood or CJ? Wood. You would? Yes. Other batters won't probably. But with Chris Jordan, he can bat as well. So the already deep. He's a tremendous fielder. He is a gun fielder. He really is one of the best fielders in the world. And he's played with you in the Kings as well. He did. And he's very good with those Yorkers in the death overs. Yeah, he does. But I think he gets a bit too predictable with Yorkers. उसकी कोई extraordinary pace है नहीं है. Right. So आप इन पाकिस्तानी विकेटों पे आप अगर 135 हो तो आपको भड़कास ही पड़नी है. हाँ, भड़कास. पर उसी में recently he's been bowling 140 consistently. Okay. उस वक्त उसको थोड़ा सा इशू था इंजरी का जिसकी वजह से he was bowling around 135 but he's been bowling around 140 consistently. और उसमें सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? He's a team man. Yeah. और team man जो Well, talking about the team, man, let's go and listen to Moeen Ali. We've got him with us right now. Mo, thanks for your time. A World Cup semi-final against India at one of the great cricket grounds. How much are you looking forward to this? Yeah, super excited. It feels like the first real big game. Obviously, had some bad weather and first real massive challenge. Obviously, with India being a great side, and at the Oval, we haven't really played here at the Adelaide Oval. So yeah, looking forward to it. How quickly is it you have to adjust to these conditions and this pitch size and dimensions? Yeah, it's obviously complete opposite to what we're used to now. I think we're used to obviously big square and small straight. So. But I think it probably suits us a little bit as well as a side. We most of us like to play a bit squarer and stuff. So yeah, looking forward to the challenge. The other thing you're going to have to cope with is the Indian crowd. It's going to be a sea of blue. There's going to be a lot of noise. Your IPL experience of you and various members of the team is going to help that, creating and living with that atmosphere. Definitely, and I think having played India before and with big crowds as well, it is great, but you kind of are used to it a little bit. It's more for probably the younger guys who haven't experienced it and making sure they're good and they're calm about it. But yeah, it's going to be amazing, and there's no better game to play against India, I guess, in the semi-final. Mentally, how do you go about a game like this? Do you try and treat it like just any other game of cricket, or do you build it up a little bit in your mind? I think you got to build it, but not too much. I think you definitely have to build it because it's a big game and it's against India, who are probably one of the best sides in the world, and the challenges they face. But we have played them a lot, and so you don't want to overbuild it because the pressure's just as much on them as well, and that's really key and crucial to take in yourself, that there's pressure on both teams, and whoever plays the best cricket hopefully will win the game. Go well this evening. Thank you. There you have it. बड़ी ज़बरदस्त बात की है उन्होंने वकार. उन्होंने कहा कि you build up the game in your mind, but not too much, वरना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है. और आज इंडिया पे भी उतना ही प्रेशर है. It's a semi-final of the World Cup. I mean, you can't. अगर आप ये मुझे कहें कि जी मेरे पे प्रेशर नहीं है, तो you lying. Very simple. और you know दोनों टीमें they will feel that pressure, they will feel that heat. और जब आपका क्राउड आपके पीछे जब होता है ना, when you have all those people just cheering you up, yes, आपको मोटिवेशन, आपको एनर्जी ज़रूर मिलती है, लेकिन जब आप अच्छा ना खेल रहे हो तो वही आपके लिए अजाब भी बन जाता है. Because you start thinking, you know what is going to happen if I lose my wicket. So you sometimes go in your shell. So it's going to be a great game. I hope England should sort out their batting order, because Harry Brooks did not been used properly. Maybe up the order a little bit. Then small ground from the side, especially. Let's see what team they select. I mean, there's plenty to talk. Still got plenty of time. Yeah, we do. Shoaib, let's go back to. आपने कहा कि जब हम बात कर रहे थे कि India might bring in the leg spinner, it's not a good idea because square boundaries होती हैं. What happens to Adil Rashid then? I mean, will he not bowl, or will he have a different length to bowl or line to bowl? What's going to happen there? I'm sure before he answers, I think this is a modern cricket thinking. Yeah. कि boundary छोटी है तो इसको ना खिला. I think, but yeah, he'll explain. Yeah. Adil Rashid, he's been performing for England
he's their main weapon, especially when it comes down to bowling in the middle overs to get wickets. So I guess वो tactics ज़रूर change करेंगे, and he's played enough cricket against India, और उनको इंडियन बैटर्स भी पता हैं. बट उनको मेरे ख्याल में जो एक जॉब दी जाती है फ्रॉम हिज कैप्टन, वो यही होती है कि गेट अस विकेट्स इन द मिडल ओवर्स. तो जो वो टारगेट है जो लंबा होना है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए. बट इट्स यू गेट अ प्लान एज अ बॉलर, बट एंड ऑफ द डे द एग्जीक्यूशन कम्स फ्रॉम योर. So I guess I'm sure he'll change his tactics to bowl against Indian batters. तो अगर वो टैक्टिक चेंज कर सकते हैं तो why not चहल? Chahal can also change the tactics then? नहीं, आप सीधा एक बंदा खिलाएंगे ला के जो पहले नहीं खेल रहा है, और उनकी बॉलिंग लो ट्रैजेक्टरी वाली नहीं है एज कम्पेयर टू आदिल रशीद जो है वो काफ़ी वेरी करते हैं अपनी पेस को, लेकिन चहल जो है वो थोड़ी लूपी वाले लेग स्पिनर है, इस वजह से फील्ड में वो चहल कभी भी कर लेते हैं. चहल कभी भी कर लेते हैं. मतलब कि घुमे होते हैं. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching. You're watching A Sports and the Airwise app. It's the second semi-final big game. India versus England, और 1 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा एडिलेड में. मजीद बातचीत होगी इसके बारे में, देखते रहिए. मिलते हैं ब्रेक के बाद. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप. इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में बात करते हैं मिसबा. लेट्स टॉक अबाउट देयर टॉप ऑर्डर. फाइनली देयर टॉप ऑर्डर आल्सो फायरिंग, बिकॉज उधर भी प्रॉब्लम चल रही थी, एंड नाउ देयर आल्सो इन द रन्स. टॉप ऑर्डर ही फायर कर रहा है उनका मेरे ख्याल में, हैवीली डिपेंडिंग ऑन जॉस बटलर एंड हेल्स. अच्छी फॉर्म में है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो डिफरेंस नज़र आ रहा है इंग्लैंड टीम का, यूजुअली वो अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं. डिफरेंट ब्रांड उन्होंने ही शुरू किया इंटरनेशनल क्रिकेट में 2015 के बाद. द वे दे जस्ट स्टार्ट गोइंग आफ्टर द बॉलिंग्स, वो नज़र नहीं आ रहा. अभी अगर आप देखें इस पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड बेसिकली अपनी बैटिंग में वो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं इनिंग, और मेनली अपनी बॉलिंग पे डिपेंड कर रहा है. हालांकि इंग्लैंड हमेशा से बैक करता है अपनी बैटिंग को कि ठीक है जी 180 करा दो, 90 करा दो, इवन 200 भी करा दो, वी कैन चेज दैट. तो बेसिकली नाउ प्रेशर इज़ मोर ऑन देयर ओपनर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है जॉस बटलर का. देख रहे हैं द वे ही इज़ जस्ट बैटिंग, एंड ही इज़ द वन हु गॉट रन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ में भी, और अभी भी जैसे ही वो रन्स करना शुरू हुए हैं तो इंग्लैंड थोड़ा सा जो होप उनकी वापस आई है. आई थिंक ही विल बी द की, एंड एलेक्स हेल्स आल्सो द वे ही इज़ बैटिंग. सो आई थिंक स्पेशली डेविड मिलान नहीं है, और नीचे उनकी जितनी बैटिंग है, हमने जितनी बात की है, अभी तक कोई भी उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया अपनी बैटिंग में, उस तरीके से रन्स नहीं कर पाए. इसी वजह से मुझे लगता है कि इंग्लैंड अंडर प्रेशर है. लास्ट गेम चेस करते हुए रन बॉल पे फंस गए थे, जब उनके ओपनर आउट हुए, सेट करके दे गए थे वो सारा अगेंस्ट श्रीलंका. एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि रन बॉल भी नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से वो मैच जीते. तो अब ये एक और मसला होगा इंग्लैंड के लिए कि अब हमने करना क्या है. बेसिकली टॉस के बाद जीत जाते हैं तो क्या करें, हम बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करें. आई थिंक वरीज हैं इंग्लैंड के लिए काफ़ी उनकी बैटिंग की वजह से. Yes, and how do they address the problem of on a semi-final day? I mean, अब ये जो कह रहे हैं कि problem उनके middle order में. I think probably उनके ज़हन में ये चीज़ें होगी भी नहीं at detail. They just want to play the semis. They qualified for the semi. It's World Cup. It's against both were one of the favorites even before the World Cup started. Yeah. So they at the place जो हर कोई expect कर रहा था कि यहाँ पे ये होंगे. So आज वाले दिन मेरे नहीं ख्याल है छोटी वरीज उनको होंगी, और हम तो बैठे हुए हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि उनके records क्या हैं, present form क्या है. But I think as a players you don't go into detail, you go game by game. वरीज मेरा हाल पता चलेंगी क्योंकि दोनों जो टीम्स हैं they would like to bat second. अच्छा, चेस both would like to chase. लेकिन अगर वो टॉस जीत के दोनों में से किसी ने पहले बैटिंग की तो वरीज पता चल जाएगी. लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि बैटिंग सेकंड हो. इंडिया का भी हम लोगों ने देखा परसेंटेज 84% है. दैट इज प्रीवियस. नहीं इसकी जरूरत नहीं. रिसेंटली याद हो गया. रिसेंटली जो इंग्लैंड है वो स्ट्रगल कर रही है चेज में. रिसेंटली उन्होंने स्ट्रेटजी इस वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी देखें,
वो पहले बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी बैटिंग उस फॉर्म में नहीं है जैसे वो पहले पावर हाउस था। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि इंग्लैंड को ये पिछले वर्ल्ड कप में भी इनके साथ हुआ, फिर इनके साथ जब ये क्रंच गेम में आते हैं, इवन चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता उसमें भी सेमीफाइनल में आके थोड़ी सी पिच भी थी, उसमें भी उन्होंने कंप्लेन की पिच की जी, लेकिन वो मतलब नॉर्मली जब हम लोग जब भी उनके अगेंस्ट खेले हैं इवन स्लो पिचेस पे भी इंग्लैंड में उसमें लेकिन उनकी वो पहले अटैक बैटिंग आई करते हैं, थी। वो अपनी गेम खेलते हैं। बट ये जो नॉकआउट स्टेज पे मुझे लगता है वे ऑफ जो प्लेइंग है वो अपना उनको सेम रखना पड़ेगा, जो अग्रेसिव जैसे वो बैटिंग करते हैं। अदरवाइज़ उनके बैट्समैन ऐसे नहीं हैं, ये जितने भी लिविंगस्टन हैं, स्टोक्स है, ये फंस के इनके लिए खेलना मुश्किल हो जाएगा। तो वे ऑफ जो प्लेइंग है वो अगर वो रखेंगे, एग्रेसिव जो वो करते हैं, तो उसमें उनकी सक्सेस। आई थिंक इंग्लैंड विल बी बेटर ऑफ चेजिंग, बिकॉज इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो चेजिंग के लिए बेहतर है। अगर इनको डिफेंड करना पड़ गया ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली विद द एब्सेंस ऑफ वुड एंड ऑल्सो साइड बाउंड्रीज चेज का रिकॉर्ड भी अच्छा है यहाँ पे एडलेड में। Yeah, so I think both teams you said would like to go into a chase. We'll be थोड़ी देर में हम लोग एडलेड जो है वो कट अवे करेंगे टॉस के लिए. We're getting close to the toss of the second semi-final. This is India versus New Zealand. थोड़ा सा जरा कल recap करते हैं एक दफ़ा फिर. Yesterday's toss, Wasim, New Zealand won the toss. I know. And they went into bat, and then that pitch was behaving very different. Very difficult. Looked very different. Very different. And then as soon as Pakistan came into bat, it just was a different pitch. I think we tried to explain yesterday, मिसबा ने भी ये mention किया था कि probably जब lights on होती है ना तो dry pitch पे हल्का सा moisture आ जाता है, जो हल्के से moisture से वो bit की जो आपकी dry होती है वो kind of जुड़ जाती है. And I think that's what happened. It was meant to happen. I'm not taking credit away from Babar and Co and especially Rizwan. But yeah, I thought कि इस पे 170 होता तो विकेट मुश्किल लगती है चेज करते हुए. बट पाकिस्तान की बॉलिंग ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने फंसा के रखा, हालांकि उनकी 6 विकेटें हाथ में थी. वसीम भाई, जब आपको पास इतने रन हो ना, सिर्फ जो वन 150 पार्टनरशिप के, तो फिर ये होता है कि अगर आप ऊपर से आपको विकेटें ना मिले तो फिर ऐसा लगता है कि ये विकेट बड़ी आसान हो गई है, क्योंकि बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं. उनका जो मोमेंटम होता है और उनका जो वे ऑफ प्लेइंग होता है वो ऐसे लगता है डिक्टेट करता है कि जैसे कि यार पिच बहुत अच्छा होगी. नहीं, इट वाज जस्ट दे प्लेड really well. Both our openers played really well. They set the tone from the word go. Yeah. Who, Misbah, do you think would Pakistan like to have in the final as an opposition? आई थिंक ओवरऑल तो पाकिस्तान ने अब करंटली इंडिया से भी पाकिस्तान जीता हुआ है. इंडिया पे भी प्रेशर होगा. नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान की जब गेम होती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है दोनों टीमों पे. बट आई थिंक एट द मोमेंट पाकिस्तान वुड नॉट माइंड. कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हम लोग पिछले वर्ल्ड कप में जीते हैं, अभी एशिया कप में जीते हैं. तो पाकिस्तान जिस किस्म का मोमेंटम है, जहाँ से आए हैं, राइट टाइम पे पीक किया है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को मैटर करता है कि कौन सी टीम आएगी. बट मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट आएगा तो और ज़्यादा पाकिस्तान विल फील ईजी मे बी, क्योंकि उनकी उस तरीके से बेसिस कवर नहीं है. ओवरऑल बैलेंस उनकी टीम का आई डोंट नो कि आज वो कैसे खेलते हैं, किस फॉर्म में. अगर वो जीतते हैं ऑब्वियसली दे हैव टू प्ले वेल. बट अभी तक जो वर्ल्ड कप में ओवरऑल नज़र आ रहा है, इंडिया स्ट्रॉन्ग लग रही है, इंडिया बेहतर टीम लग रही है और इंग्लैंड उस तरीके से नहीं है. तो मैं इंग्लैंड पाकिस्तान माइट जस्ट थिंक कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज होगा. Now, India wins this, has a momentum, and we have an epic final. Pakistan va muqabla India. India has won the last game that we've had in this World Cup. How much pressure does that add on the Pakistanis? कि पिछला मैच जीते हुए इस वर्ल्ड कप में हमने इतना बड़ा स्कोर किया था, एंड में डिफेंड नहीं हो सका. It was a close game though, so वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. याशी भी you can answer. I guess Pakistan will not prefer playing against England. Recently we lost a series against England हमारे home soil पे. मुझे ये लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल जो है ना, वो Pakistan will prefer playing against India. Yeah, and an India-Pakistan final, Wasim, that would be, I don't think there's anything bigger than that in the world of cricket. No, stuff like I said, stuff of the legends, dreams made out of this kind of Indo-Pak final अगर ये हो जाए. I think एक final मुझे याद है जो मैं खेला था, मेरा पहला वो टूर्नामेंट था, मिनी वर्ल्ड कप, where India won.
फाइनल में मैं नहीं था खेला, मुझे इंजरी हो गई थी, मेरे हाथ पे बॉल लग गया था उंगली पे कैच पकड़ते हुए, सो आई डिडंट प्ले the final against India and they won that game and where I think Ravi Shastri got man of the series, the famous Audi. जी. He, by the way, that Audi is he used to restore किया Audi को उसको. अच्छा. Restore किया and he gets sponsored by Audi since then in India. Wow. Every year he get a new car. Obviously he gives the old car back. Yeah. But yeah, that's why how वो करते हैं वहाँ पे. And he has that original one. Original उसको restore किया था 2-3 years ago. He was telling me. Just holding on to that. Yeah. So India Pakistan final it'll be unbelievable. Yes, I would love to see India Pakistan. Yeah, final. yeah. So we're just 1 minute away from the toss for the second semi-final. It's India versus England, and again, Waqar, we're still not clear what to do when you win this toss. मेरा ख्याल है टॉस का ही वेट कर लें क्योंकि बीच में फिर बात कट जानी है क्योंकि एकदम अचानक टॉस आ जाना क्योंकि नहीं बात कर लें आप जब काटना होगा तो काट लेंगे बस आप ये बता दें कि आप क्या करते टॉस जीत के मैं जी मैं आप जिस कंफ्यूज कर दिया मुझे लुक आई थिंक चेजिंग इज बेटर whoever wins the toss. Yeah, that would be the safest safest bet. Looking at the pitch, जो घास and if you bat first, what kind of target are we talking about here this time? 170 plus minimum. I think is high scoring ground रहा है. एक पिछली गेम थी थोड़ी. जी. तो 180 यहाँ पे score क्या है? All right, 170 plus. And with that, we're taking you to Adelaide, and here's the toss brought to you by Dettol soap. Well, it's a nice, cool evening here in Adelaide, and the atmosphere building up all the time as we come to toss time in the second semi-final between India and England. Rohit Sharma, Josh Butler, David Boone, the match referee, all in readiness. Rohit will spin the coin. We're going to bowl. Well, Josh, you've won the toss. What have you decided? We're going to bowl first. What's the mood like in the dressing room? Big semi-final, there's two good sides. Absolutely, yeah, excitement. It's obviously going to be a fantastic atmosphere, one of the great grounds in the world, and we're really excited for the match. The fact that you've not played in Adelaide before in this World Cup, does that make a difference? No, I don't think so. Obviously, the dimensions here are a little bit different, so we'll have to adapt to that quickly. And when you look at the morale in the team, and you've had some injury problems, what's the scene? Yeah, we have two changes. David Malan and Mark Wood miss out with injuries. Phil Salt and Chris Jordan come in. You're fielding first. What do you make of the surface? I think it looks a good wicket. I expect it hopefully to stay the same throughout the whole game. Have a good one, Josh. Thank you. Well, Rohit, what would you have done? Yeah, we would have batted first anyway. Yeah, and your morale pretty good. You played some good cricket. Yeah, we played some good cricket, but you know, here comes crunch game for us. I mean, all the game that we played were quite important for us. But again, another opportunity for us to come out and play the way we've been playing all through this tournament. Important to just hold your nerve and take the game till the end. You're number 1 and number 2 teams in the rankings. You played a lot against each other of late. That'll help. Yeah, I mean, we've played these guys a fair bit in the last few years. I mean, we do understand how, what sort of strength they come up with and what sort of weakness they have as well. So it's important to try and exploit that. But it's important, to just keep calm and just do what we want to do as a team. And that's what, has given us success in this tournament. How's that hand of yours? A bit of an injury scare? Yeah, it was, but it seems to be absolutely fine now. There was a bit of scare, but I'm completely fine now. And you have a wealth of talent to pick from. What is your team for today? Yeah, I mean, look, it's the kind of talent we have, like you said rightly. It was a tough one, but again, we've gone with the same team. We wanted to, keep the same team, keeping, all sort of dynamism of the ground in mind. What gives us that flexibility as well. So we have stuck to that same team which played against Zimbabwe. Well, have a good one. Enjoy it, Rohit. Thank you very much. Well, that's the news from the centre. It is England who won the toss, and they've decided to bowl first. Right, the news out of Adelaide. England had won the toss and elected to bowl first. They'll be chasing, but Rohit Sharma ne kaha ki agar wo toss jeete to pehle batting karte. Yeah, he did. I think Misbah was whispering right now with me during that interviews that I think India चाहता है कि runs on the board, knockout, chasing का pressure एक दो विकेटें गिर जाए different होता है. वो अपनी strength से जा रहे हैं, but so it's blessing in disguise kind of toss कि जो आप करना चाहते हो toss हार गए हो, आपने अगली टीम ने आपको वही करने दिया. दोनों टीमें खुश. दोनों टीमें खुश. So they both got what they wanted, right, Waqar? Yeah. What
England will be confident 170-180 chase करने में कामयाब हो I सकते हैं? think so. I think that's what probably they're thinking. And जैसे कप्तान ने कहा है ना कि hopefully ये पिच इसी तरह की रहेगी, पिच नहीं अगर पिच नहीं चेंज होएगी तो I think England got a fair chance in this game now. Yes, अगर आप तुलना करें या बैलेंस करें टीमों को तो probably India is a better team, but अब टॉस की वजह से I feel कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं even out हो गया. As anticipated, Shoaib, Chris Jordan in because of Mark Wood's injury and Malan goes out and Phil Salt comes in. How does that change the dynamics of the English team? Well, of course, Phil Salt will be batting at number 3 और क्योंकि Alex Hales और Josh Butler जो है they've started scoring runs from the last couple of innings और वो उस फॉर्मेशन को चेंज नहीं करेंगे. और दूसरा क्रिस जॉर्डन फ्रेश बंदा आया है, एक और अच्छा बंदा फील्डिंग में भी आया है. सो ऑफ कोर्स मार्क वुड भी इसके साथ होते तो और फ़र्क पड़ता, बट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बैटल बिटवीन टू गुड टीम्स. वैसे भी रैंकिंग में एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है, तो आज एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा. बिल्कुल देखने को मिलेगा. ये प्लेइंग 11 लेकर आते हैं. इंडिया की पहले प्लेइंग 11 आ रही है. मिस पर टेक अस थ्रू. नो चेंज हियर. Rahul, Rohit, Virat, obviously strong top order, and then obviously number 4 सूर्य कुमार. ऋषभ पंत को उन्होंने खिलाया. साइड बाउंड्रीज छोटी हैं तो कहीं ना कहीं बीच में लेफ़्ट राइट कम्बिनेशन के साथ जाएंगे. हार्दिक हैं, रैशमैन, भुवनेश्वर कुमार, शामी, अर्शदीप. सो ओवरऑल आई थिंक दे आर गोइंग विद द सेम टीम जो लास्ट मैच के लिए अगेंस्ट जिम्बाब्वे. इट्स अ गुड साइड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी बैटिंग ठीक बहुत बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है. टॉप 4. England that made 2 changes. Butler, Hales, a good nick. The opening new batsman Phil Salt comes at number 3, and then also Stoke at number 4. Brook, I think it should be Brook 4, Stoke 5, but that's what the word. Then Ali obviously is good nick, and then the bowlers / all-rounders. Jordan walks in for Wood, and I think it's a big deal for England that Wood is not playing. He has been phenomenal in this tournament. So yeah. It'll be evenly poised contest in my opinion. Wood, आपने कहा कि बड़ा बिग इनको झटका लगेगा. Wood not being there. Yeah. But Chris Jordan, what does he bring to the table on the bowling side of England? He's one of the best fielders in world cricket, not just in England team, no doubt. And we've seen time and time again death overs में उसके यॉर्कर बड़े अच्छे होते हैं, but predictable हो जाता है. और पेस शोएब भी कह रहा है 140 से कर रहा है वो consistently from last 6 odd months. I haven't seen him recently. Wasim bhai, with these dimensions, especially सामने boundaries बड़ी हैं तो he could be effective, especially with the Yorkers. तो बड़ी साइड पे मारना पड़ेगा. तो ये उनकी फेवर में जा सकता है. Wood क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ और शॉर्ट बॉलों पर रिलाई करते हैं. विद द साइड बाउंड्रीज, स्मॉल बाउंड्रीज, आपका वो जो है आपकी अगेंस्ट भी जा सकता है प्लेयर. बट लेट्स सी. सूर्य कुमार यादव भी खेलता है साइडों पे. अगर यॉर्कर आने शुरू होगी उसके लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. उसके लिए फाइन लेग और स्केयर लेग आपको अंदर रखने पड़ेंगे. नो मैटर किस लेंथ पे आप बॉल कर रहे हैं, दैट्स द रिस्क यू हैव टू टेक. और उसको अपनी स्ट्रेंथ से हट के खेलना पड़े, दूसरी तरफ खेलने जाए वो. आई थिंक दैट्स the only chance you have against him. और इसके साथ ही दोस्तों एक और ब्रेक की तरफ जाते हैं. आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. The news out of Adelaide is कि इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. इंडियन बैट्सर्स जो हैं वो पैड अप हो रहे हैं अब से कुछ देर बाद. बाकायदगी से हम आपको लेकर चलेंगे एडलेड, जहां से बराह रास्त आप देख सकेंगे दूसरा सेमीफाइनल. इस मैच के अख्ताम पे फैसला होगा कि कौन सी टीम पाकिस्तान से टकराएगी फाइनल में. सो बिग डे टुडे फॉर बोथ इंडिया एंड फॉर इंग्लैंड. एंड विद दैट इट्स टाइम फॉर our expert predictions brought to you by Olivia. Misbah. कौन जीतेगा यार? All right, Misbah. मैं तो पीछे उनसे पूछा है, वो कह रहे हैं इंडिया. इंडिया किससे पूछा आपने? कैमरामैन से. वो कह रहे हैं इंडिया. एक्सपर्ट वो है आप हैं. एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस है. आज कुछ समझ नहीं आ रही वैसे. बनेरे पे ही बैठे रहते हैं. हाँ, बनेरे पे बैठा रहते हैं. हाँ जी बताएं फिर फाइनल करें ना यार. बता दिया आपको. इंडिया. ओके. आज मैं पड़ोसियों को पूछा. वसीम. For me it's India. They look matchups में भी ये strong लग रहे हैं. वकार. इंग्लैंड आई थिंक. इंग्लैंड. दोनों इंग्लैंड आ रहे हैं उधर में. शोएब. इंडिया.
India. इंग्लैंड कह नहीं सकता ना, मसले और Oh yes, I forget. The pressure is different. हमेशा जवाब नहीं देना चाहिए हर चीज का। हर चीज का जवाब। इसका एक्सपर्ट प्रेडिक्शन नहीं, वकार भाई की बात का। वकार भाई अकेले ठीक होंगे। वो आ जाएगा ना फिर my favorite. Yes, your favorite. Well, that was your expert prediction brought to you by Olivia. शुक्रिया। मिसबा had a comment there. जी क्या कह रहे थे मिसबा आप वकार के? लगे एक क्वालिटी है वकार भाई की, या अकेले जीतते रहे या अकेले हारते रहे। इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाना है। वसीम में बड़ी सीरियस करना हो गया। Very English. Very English. Against the tides, swim करते हैं। Very English. ये जो next 5 मिनट है ये हमेशा बड़े ये सबसे मुश्किल, ये सबसे हमारे 2 मिनट है, 5 मिनट ये 2 मिनट है। तो इसलिए 2 मिनट में जितनी बोंगियां मारनी है हम मार। नहीं, let's talk about cricket. Let's talk about mood swings. Mood swings. Yeah, let's talk about ये that. तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मूड स्विंग के बारे में जरा बताएं वसीम। किसका, मैं क्यों बताऊं? I ain't going down that line. Yes, थोड़ा जी यार। He is fine. He has been great actually. Yeah. Good So sense of Shoaib, humor, what were you good talking fun. about? What mood swing were you talking about? All I said was let's talk about mood swings. That's it. It's almost a month now. You know, we have been together every day for a month. How was your experience? आने से पहले क्या सोचा था और अब क्या है सोचा? Good question. Ask another one. तब ये पूछने कितनी लंबी बैठी? Good question. Ask another one, please. 30 सेकंड रह गए। 3 सेकंड। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ that I'm working with you all for the first time. बहुत कंफर्ट जोन दिया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। Yes, okay, incredible. That's good. But हम हैं ही ऐसे वसीम, हमारे अंदर एक ऐसी मकनातीसी ताकत मौजूद है कि जो भी हमारे हुजरे में आता है वो हमारे साथ रंग मिल जाता है। सारा कराची का खाना खींच लेते हैं। सारा कराची का खाना खींच लेते हैं। मकनातीसी ताकत। सूप मंगाया। आज मैंने सूप नहीं मंगवाया भाई। 3 सेकंड सूप नहीं। आज मैंने कहा, मिसबा ने कहा कि कोई हल्की फुल्की चीज़ मंगवाए, तो मैंने कहा सैंडविच मंगवा रहे थे, कहते नहीं कोई हल्की फुल्की चीज़ मंगवाए। कढ़ाई मंगवा लो। मटन कढ़ाई, दुम्बे की कढ़ाई। लेकिन जब सैंडविचेस की बात हुई है तो मिसबा भाई ने कहा उन बनाने वाले नहीं आते, बुला लो। लेकिन वो अच्छा आता है, वो ग्रीन सा वो जो सूप आता है। अरे आपका फेवरेट है वो। I love that. Green vegetable. It looks ugly though, but it's very tasty. Yeah, it looks ugly though, but it's very tasty. That's green है ना, very green. So you prefer looks or the taste? अच्छा। That's why आपने उसका नाम क्या रखा हुआ है? उसका नाम क्या है उसका? I'm not telling you. Vegetable green soup का naam. Vegetable green soup. It's a greens. Yeah. Vegetable I'm green not saying soup. what you say. All right, folks. You know this. Our conversations will carry on, and we will be back with you at the end of the game. अब से कुछ लम्हात बाद हम आपको बराह रास्त लेके जा रहे हैं एडिलेड, जहां पर इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड दूसरा सेमीफाइनल जो है वो शुरू होगा। जीतने वाली टीम का मुकाबला होगा पाकिस्तान से फाइनल में इस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। वी विश बोथ द टीम्स ऑल द बेस्ट, गुड लक, मे द बेटर टीम विन। वील सी यू एट द एंड ऑफ द डे। कीप वॉचिंग A Sports, 10 Sports, the ARY's app, and the Pavilion will be back after the game.